کی کانفرنس بھی اسی نام کے اوپر انعقاد پذیر ہے۔ آپ احباب اپنی محبتوں کا ذرا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نبی نو تاج پہنایا گیا، ختم نبوت دا ہے مالک تاجدار انبیاء، ختم نبوت دا دیوانہ بن کے رہنا ہے، صدا ختم نبوت دا عقیدہ پکا ٹھکا ہے، میرا ختم نبوت دا ترانہ گج کے بج کے سنا ختم نبوت دا، محمد پاک دا نوکر کسے کانے تکانا نہیں، محمد پاک دا نوکر کسے کانے تکانا نہیں، ترانہ گج کے بج کے سنا ختم نبوت دا، جو نوکر ہے تو پھر حق بھی ادا کر نوکری دا، تو جو مومن ہے تو پھر لا نعرہ ختم نبوت دا، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ آپ کی محبتوں کو سلام ہے، آپ کی عقیدتوں کو سلام ہے، لیکن اب یہ دفاع ختم نبوت کا ہے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سلام آپ کی محبتوں کو، سلام آپ کی عقیدتوں کو۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا داستاں ہماری، ہمیں سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ تشریف فرما ہے عظیم مذہبی سکالر فضیلت الشیخ محترم جناب حافظ عبدالرزاق ساجد حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، عقیدت پیار کا نام ہے اور عقیدہ معیار کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جو کچھ بھی اتارا ہے معیاری اتارا ہے، اسے غیر معیاری بنانے میں حضرت انسان کا اپنا ہاتھ اور اپنا کردار ہے۔ الا للہ الدین الخالص، تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ وہ غیر معیاری چیز نہیں لیتا، اس نے خالص دیا ہے، بدلے میں خالص مانگتا ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ آج کی اس کانفرنس کی وساطت سے دنیا بھر کے انسانوں کو یہ دعوت ہے کہ اگر آپ کے وجود میں اللہ نے سینہ رکھا ہے تو سینے کے اندر کینے کو چھوڑ کے، بغض نفرت کو چھوڑ کے، علم نشرح لک صدرک، محبوب کی سیرت والے اس سینے کو لے کے اور کھلے دل کے ساتھ حق کو قبول کرنے کی اپنے اندر اللہ سے توفیق بھی مانگا کریں اور صلاحیت بھی پیدا کریں۔ ضد اور انا بندے کو مار دیتی ہے۔ پیار کے اندر افراط اور تفریط منع ہے۔ اگر اس میں غلو ہو جائے تو تب بھی بربادی، اور اس میں اگر تنقیص ہو جائے تو تب بھی تباہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ پیار وہ پیار ہے جو ابھی آپ سن چکے کہ اپنی جانوں سے بڑھ کے، والدین سے بڑھ کے، بچوں سے بڑھ کے، کل کائنات اور جہانوں سے بڑھ کے اس پیار کو مانگا گیا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوزے میں دریا بند کر دیا گیا یہ حدیث پاک بیان کر کے کہ تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا پیار اپنے باپ سے لے کے جناب آدم تلک جتنے بھی آبا و اجداد گزرے ہیں ان سب سے زیادہ نہ ہو، وہ ولد ہی اپنے بیٹے سے لے کے قیامت تک آنے والی نسل میں جتنا بھی پیار بانٹا جا سکتا ہے سب سے بڑھ کے پیار محبوب سے نہ ہو،
वन्नास अजमाइन, जितने याराने दोस्ताने हैं उन सब से भी बढ़ के प्यार महबूब से नहीं होगा तो अल्लाह ताला उस मोहब्बत को कबूल करने वाले नहीं हैं और वो ईमान के दर्जे को पहुंचने वाली नहीं है। मैं इंशाअल्लाह बड़े इख्तिसार के साथ अपने दोस्त अहबाब को कि जिनके सीने में एक मुस्बत चीज़ है, अल्लाह ने दिल दिया है, धड़कनें दी हैं, खून दिया है, रवानी दी है, जवानी दी है, तो इस खून को मोहब्बत में तब्दील करते हुए ज़रा ये देख लीजिएगा कि ये मोहब्बत अल्लाह के यहाँ मेयारी भी है कि नहीं है। देखिए, अगर हम किसी चलती हुई खातून के साथ कोई बाजारी जुमला कसते हैं तो लोग उसके ऊपर एतराज़ रखते हैं, होती तो वो भी मोहब्बत है और मोहब्बत की एक अलामत भी है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है क्योंकि ये मोहब्बत मेयारी नहीं है। और अगर इसी को दीन के साथ निकाह में बदल करके इंसान अपनी जिंदगी का जीवन साथी चुन के गवाह लगा के फिर उसी सिलसिले को लेता है तो एक बूढ़ा बाप अपनी जवान बेटी को बेशुमार लोगों की मौजूदगी में इस मोहब्बत को मेयारी समझ के आपके हाथों दे के रवाना कर देता है। अल्लाह और उसके रसूल का प्यार, अकीदत तकरीबन हर कलमा पढ़ने वाले के दिल में है। हम किसी के दिल को चीर के नहीं देखते, लेकिन दावत देते हैं कि ज़रा मोहब्बत का मेयार और अकीदत का मेयार अकीदा बनाइए, वगरना अकीदत किसी काम की नहीं। पहली मिसाल, बसा औकात बंदे को अकीदत खुद से होती है और बंदा उस अकीदत में बहुत कुछ बोल जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब मलाइका में ऐलान किया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में अपना खलीफा हजरत इंसान को भेजने वाला हूं, तो फरिश्तों ने क्या कहा था? उन्होंने अपना आप पेश किया था, अपनी तकदीस की बातें की थी। नहनु नुक़द्दिसु लक, कि हम आपके लिए आपकी तस्वीर भी बयान करते हैं, नुसब्बिहु बिहम्दिक, ये भी हमारी आदत है, हम आपके साथ तकदीस का मामला रखते हैं। लेकिन आप किसको भेज रहे हैं? मैं युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, ये खून रेजी करने वाला, फसाद बर्पा करने वाला आप इस इंसान को खलीफा बना रहे हैं। तो यहां अपनी मोहब्बत, अपनी अकीदत और अपना आप पेश किया गया। अल्लाह ताला ने इस अकीदत की इस्लाह अकीदे से फरमाई कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानता, और फरिश्तों ने इस्लाह कर ली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, अल्लाह हमने अपनी मालूमात की हद तक बात की है, लेकिन जो तूने बताया, जो तूने सिखाया, तू जो करता है वो उस पर गालिब है, कादिर है, तो इस्लाह कीजिए, यही बेहतर है। दूसरी तरफ अपना आप पेश किया। जब अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया तो शैतान कहने लगा कि मेरे से नहीं होता। वजह पूछी गई तो लॉजिक देने लगा अकीदत में, अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं। आज मैं देख रहा हूं कि हर मसलक ने यह वतीरा बना लिया है कि वो अपने मानने वालों को यह सिखाता है कि हम सबसे बेहतर है, हम सबसे बेहतर है। अल्लाह करे कि कभी हमारा यह भी मनहज बने कि हम इसे उमूम पे रखें। भाई, जिसकी भी अकीदत अकीदे के मुताबिक मेयारी है वही बेहतर है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम सबसे बेहतर इंसान मोहब्बतों में, अल्लाह की रजा में, रब के प्यार में वो है जो अत्काकुम, अल्लाह के हुक्म को मानने वाला और अल्लाह की नवाही से खुद को रोकने वाला है। ये अल्लाह के यहां मुअज़्ज़ज़ है। मगर हमने अपनी बिरादरी को बुत बनाया, कबीले को बुत बनाया, मसलक को बुत बनाया और अपने फिरके को बड़ा करके हमने खुद को अच्छा कहा, दूसरों को बुरा कहा। इस्लाह की बारी आई तो हमने कहा कोई और करे, हम नहीं करेंगे। तो ये शैतान कहने लगा अना खैरुम मिन, अकीदत है अपने साथ, प्यार है, मैं बेहतर हूं, मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बना है। क़यामत तक के लिए धुतकार दिया गया क्योंकि इसकी अकीदत जो थी वो अकीदे के मुताबिक नहीं थी। अकीदा कहां से मिलता है? अर्शे बरी से, अल्लाह रब्बुल इज्जत से। आवाज आई इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। मुमकिन है कि अकीदत किसी बड़े को आगे कर दे, अकीदत वालिदैन को आगे कर दे। फरमाया ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल्लाह। लोगों सुन लो, अकीदत में बड़ी से बड़ी दरबार क्यों ना हो, मिजार क्यों ना हो, सरकार क्यों ना हो और साहिब दस्तार क्यों ना हो, बहुत
बड़ी सरकार और हस्ती क्यों ना हो, वो वक्त का वली माना जाए, औलियाउल्लाह कहो, जो मर्जी कहो, कुतुब अब्दाल कहो, लेकिन वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, आसमान से जो अकीदा उतरा है उसके मुताबिक अकीदत दीजिएगा। ये ना हो कि अपनी सरकारों के पीछे लग के, हस्तियों के पीछे लग के, बस्तियों के पीछे लग के प्यार अपना जो है इजहार करके, किसी के चेहरे मोहरे को देख के, किसी के रंग रूप को देख के, कद काट या बंतर बनावट को देख के, किसी के जुस्से और जुब्बे को देख के आप ये कहें कि जो ये कहेंगे वो हम करेंगे। कहा नहीं, आसमान से जो उतारा गया है, और आसमान से वही उतरी है, किताब और सुन्नत को उतारा गया है, और उसके मुताबिक जिसने अपनी मोहब्बत में यारी कर ली, अकीदत में यारी कर ली, अकीदे के मुताबिक बन ली, वो कामयाब है, वगरना नाकामी है। लोगों ने कहा था कि हम शादी नहीं करेंगे, लोगों ने कहा हम माबद खानों में निकल जाएंगे, लोगों ने कहा जंगलों वनों में निकल जाएंगे, हम रब वाले बन जाएंगे। आपने देखा कि हिंदू कहां कहां चला गया, ये कभी ऊंचे पहाड़ों पे गया, कभी गहरी गारों में गया। आपने देखा कि सिख कहां कहां पहुंचे, बुद्ध मत कहां कहां गए, ये ईसाइयत कहां पे गई। इन लोगों ने दूर दराज इंसानी आबादियों से इलाके चुने और रहबानियत इख्तियार की। मोहब्बत थी अल्लाह से तो हुई, बीवी बच्चे ऐसे नहीं छोड़े जाते, इंसान अपना कारोबार ऐसे नहीं छोड़ लेता, मोहब्बत और अकीदत होती है तो छोड़ता है। लेकिन मेरे महबूब ने अकीदे से इस्लाह फरमा दी कि ला रहबानियत फिल इस्लाम लाए नफी जिन्स है। कायनात के अंदर कोई ऐसी अकीदत, कोई ऐसी रहबानियत, कोई अल्लाह के लिए निकलना, आबादियों को छोड़ना, वीरानों में जाना, वनों में बैठना, जंगलों में आलती पालती मारना, वहां पे जाकर के योगे करना और तन्हाइयों में बैठ करके अल्लाह अल्लाह और या रब कहना। अल्लाह फरमाते हैं महबूब इनको कह दो ला रहबानियत फिल इस्लाम, ये तुम्हारी अकीदत कोई मामूली सी भी वैल्यू नहीं रखती। एक और इशू आया, मेरे महबूब के बड़े ही प्यारे 3 सहाबी हैं, सैयदना अली हैदर कर्रार अली अल मुर्तजा रदी अल्लाह तआला अन्हु, जनाब अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल आस, जनाब उस्मान है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शब रोज पड़े दिन को देखा, आप फजर कैसे पढ़ते हैं, आप महबूब जो है वो इशराक कैसे अदा फरमाते हैं, आप चाश्त कैसे पढ़ते हैं, जोर असर मगरिब ईशा कैसे होती है। लेकिन रातों को क्या होता है जरा ये भी पता करें। मोहब्बत हो तो ये बात पढ़ी जाती है, अकीदत हो तो ये देखा जाता है। रातों की इबादत, महबूब की रियाजत, अल्लाह से ताल्लुक, मालिक के साथ एक प्यार वाला मामला क्या है। जब पता चला, उम्महातुल मोमिनीन से पूछा, अज़वाज मुतहरात से जाना, आपकी रातों के मामलात पढ़े तो फैसला कर लिया। अकीदत के बगैर फैसला नहीं, और सहाबी से बढ़ के बड़ी अकीदत किसकी होगी, खुलूस किसका होगा, इखलास किसका होगा। क्या कहने लगे, एक ने कहा आज के बाद रातों को आराम नहीं, क़याम होगा। अकीदत में डूबा हुआ जुमला, प्यार में बोली गई बात, सहाबी के मुंह से निकली हुई, मदनी दौर, मोहब्बत वही और वही के अय्याम में बोला गया जुमला, मगर नतीजा क्या निकला थोड़ी देर के बाद देखते हैं। अकीदत में डूबा हुआ दूसरा जुमला, फरमाने लगे कि आज के बाद खाना पीना खत्म, डेली रोजा, इफ्तार नहीं, रोजाना रोजा रखा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। तीसरे ने कहा इतनी बड़ी अकीदत, आज के बाद शादी वादी खत्म, कोई बीवी बच्चे का झंझट नहीं, पूरा टाइम, लाइफ टाइम, सारी की सारी जिंदगी ये अल्लाह और उसके रसूल के लिए वक़्फ, दीन के लिए वक़्फ। सर जी इत्थे तो वो मान नहीं जेड़ा चिल्ले का वादा कर लवे 6 महीने नाल टुर पवे जमात दे, सारी जिंदगी असी दसने कि बहुत मुहब्बत करने वाले ने, मगर ये पूरी जिंदगी का वक़फनामा था, ये लाइफ टाइम के रोजे थे, ये सारी रातों का क़याम था। अकीदत में डूबे हुए जुमले, राय और फिक्र आम बंदे की नहीं, सहाबा की है, मगर अकीदत की, अकीदे ने इस्लाह की। फौरी तौर पे मिंबर लगवाया, ऐलान कर दिया गया, लोगों इकट्ठे हो जाओ, महबूब कुछ कहना चाहते हैं। अगले दिन का इंतजार नहीं, अगली नमाज का इंतजार नहीं, अगले जुमे का इंतजार नहीं, अगले खुतबे में कह देंगे, ये भी
किया। इस्लाह जरूरी है, अकीदत मजबूरी है, मगर अकीदत अकीदत से खाली हो तो ये अधूरी है। मिंबर लग गया, फरमाया लोगों सुनो, मा बालो अक़वामिन, और आज हम इस कॉन्फ्रेंस की वसातत से ये कहते हैं क्या बनेगा तेरा भाई, तेरा क्या बनेगा? मा बालो अक़वामिन, इन कौमों का क्या बनेगा? यक़ूलून कदा व कदा, जिन्होंने ये बातें की हैं। क्या थी बातें? मैं सारी रात क़याम करूंगा, आराम नहीं, हर दिन रोजा रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मैं जिंदगी जो है वो दीन के लिए, रब रसूल के लिए मोहब्बतों से वक़फ़ कर दूंगा। जवाब आया, अच्छी तरह सुन लो, मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता हूं। इन्नी अख्शाकुम लिल्लाह व अत्काकुम लह, मैं तुम सबसे ज्यादा रब से डरने वाला, तकवे वाला, अहकाम पे अमल करने वाला, नवाही पे रुकने वाला, अपने आप को रब से जोड़ने वाला। सुनो, मैं रातों को आराम भी करता हूं, क़याम भी करता हूं। यह है अकीदा, यह है अकीदा, यह है इस्लाह, यह है इत्तिदाल। इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्ल वज़उ शैइन फी महल्लिह, जिसका जो मुकाम है वही दो। आबादी में रहना है, बिरानों में नहीं जाना, लोगों में रहना है, बीवी बच्चों में रहना है, घर बार में रहना है, तालीम और तरबियत भी होनी है, खालिक को भी टाइम देना है, मखलूक को भी टाइम देना है। मैं आराम भी करूं, मैं जिस्म का हिस्सा भी रखूं, मैं क़याम भी करूं, मैं रब की शुक्र गुजारियां भी करूं, मेरे पांव पे वरम भी पड़े। अफला अकूना अब्दन शकूरा, रब का हिस्सा रब को, बंदे का हिस्सा बंदे को। ये है मेरी सुन्नत। और सुनिए, मैं रोजे भी रखता हूं, मैं छोड़ता भी हूं। रमजान के रोजे पूरे, हर सोमवार का रोजा, हर जुमे रात का रोजा, चांदनी रातों का रोजा, दिन को जो अय्याम आए यानी बीज उनके रोजे। सुनो, मैंने शादियां भी कर रखी हैं, ये मेरे हुजरे भी हैं, वो सूरतुल हुजरात है। ये सब कुछ बताते हैं कि यही मेरी सुन्नत है। फमन रग़िब अन सुन्नती, जिसने अपनी अकीदत मेरी सुन्नत से बेरग़बती करके बनाई, जिसने अपना प्यार और प्यार का इजहार ऐसे जुमलों, ऐसे कलिमात, ऐसे लफ्ज और ऐसी सोच और ऐसे अकीदे और ऐसी रवानी जवानी मस्तानी, जो भी आज कह रहा है कि जनाब मैं मेरा प्यार, मैं मेरी अकीदत, मैं मेरी मवद्दत, मैं मेरी मोहब्बत, जवाब आया नहीं। फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। गुजरांवाला के बासियों, ये बात अच्छी तरह याद कर लो। बड़े बड़े लंबे चौड़े बनाए हुए दुरूद, बनाई हुई इबारतें, किए हुए आमाल, करे हुए बड़े बड़े अफजल से अफजल, बेहतरीन से बेहतरीन नेकियां समझ के की हुई, उस वक्त मुंह पे मार दी जाएंगी जब वो अकीदे से हट के होंगी। हल अता का हदीसुल गाशिया वजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया लैसा लहुम ताआमुन इल्ला मिन ज़री ला युस्मिनु वला युगनी मिन जो। ये क्या है? ये वही कुछ है। फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से हटके अकीदत बनाई, अकीदत छोड़ के अकीदत अपनाई और शरीयत को छोड़ के आमाल अपनाए, फिर वो मेरा नहीं है। जो मेरा नहीं है फिर वो कहीं का नहीं है। 3 मिसालें और या सलाम। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अकीदत में आज एक ऐसा जुमला बोला गया है, अगर अकीदत को देखो तो गुजरांवाला शहर के लोग सोने के पानी से नहीं, सोने से लिख के घरों में वो जुमला लगा देते तो अकीदत का हक अदा ना होता। अकीदत बोली है, मेरे महबूब के सामने बैठ के बोली है, महबूब माशा अल्लाहु व मा शित, माशा अल्लाहु व मा शित। होता वही है जो रब चाहे, वही होता है जो आप चाहें, जो रब चाहे जो आप चाहें, जो रब चाहे जो आप चाहें। जुमले में कोई झोल नजर आती है बकायदा? बज़ाहिर तो यही दिखता है कि हम वही करते हैं जो महबूब चाहते हैं, वही करते हैं जो रब चाहते हैं, जो रब चाहता है वो महबूब चाहते हैं। दोनों की चाहत में फर्क कोई नहीं है।
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے پیغمبر کی اتباع کی اللہ کی اتباع کی، جس نے رسول کی نافرمانی کی رب کی نافرمانی کی، دونوں ذات کلمے میں اکٹھی دکھ رہی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ہاں اکٹھا نظر آ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر 4 دفعہ کہنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار دکھ رہا ہے، اذان ایک ہے، دونوں کی ہستیوں کا تذکرہ ہے، پھر کیا ہو گیا؟ اگر ما شاء اللہ و ما شئت کہہ دیا، مگر میرے محبوب نے اس عقیدت کے نوک پلک کو سوار کر کے بولا، اصلاح کر کے بولا، سبق دے دیا، پڑھا دیا، اور آج اسی کانفرنس میں جو سیرت تاجدار انبیاء کے نام پہ سجائی گئی ہے کہ لوگوں اپنی عقیدتوں کی اصلاح کر لو، تمہاری عقیدتیں برحق، محبتیں برحق، من میں پیار برحق، سینے میں پیغمبر کی جو ہے وہ چاہت برحق، دل کی دھڑکنیں برحق، لیکن سچ یہ ہے اصلاح فرمائی، کہا کل ما شاء اللہ وحدہ، میرے صحابی، میرے دوست، میرے امتی، میرے مطیع، میرے فرما بردار، میرے ماننے والے، میرے ساتھ چلنے والے، میرے سفر حضر کے ساتھی، تو نے جو بول بولا ہے میری موجودگی میں بولا ہے، میں اصلاح کر دوں، میں جو چاہوں وہ نہیں ہوتا، میں نے بڑی بار چاہا مگر رب نے نہیں چاہا، میں چاہتا تھا کہ میرے قاسم بیٹے کو وفات نہ آئے، وہ جوانیاں پائے، لیکن رب نے جوان نہیں ہونے دیا، میں چاہتا تھا میرے بیٹے عبداللہ کو اللہ زندگی دے، میں اپنے ساتھ چلتا پھرتا دیکھوں، لیکن رب نے میری چاہت کو مد نظر نہیں رکھا، اپنے پاس بلا لیا، میں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا ابراہیم اس کا میرے ہاتھوں کے اوپر جو ہے وجود وہ قبرستان میں نہ جائے، میں چاہتا رہا، لیکن رب نے اپنی مرضیاں کی، میں چاہتا تھا میری بیوی میرا ساتھ چھوڑ کے نہ جائے، سیدہ خدیجہ چلی گئی، میری چاہت یہ تھی میرے باپ میرے سے پہلے فوت نہ ہوتے، رب نے یتیم مکہ بنا دیا، میں چاہتا تھا کہ میری ماں فوت نہ ہو، کون چاہتا ہے کہ اماں فوت ہو، لیکن رب نے مرضیاں کی، دادا کی وفات ہوئی، رب نے مرضیاں کی، چچا ابو طالب فوت ہوئے، رب نے مرضیاں کی، میری بیوی سیدہ زینب بنت جاش اور دوسری سیدہ زینب بنت خزیمہ اللہ کو پیاری ہوئی، میں نہیں چاہتا تھا، وہی آ گئی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بیٹے کو جوان ہو کر کے مرد بننے ہی نہیں دیا، تو میری مرضیاں کہاں ہیں؟ میں نے تو کہا تھا کل آنا میں جواب دے دوں گا، آسمان سے وحی نہیں آئی، 1 دن 2 دن 3 دن چلتے چلتے کام لمبا پڑ گیا، حتیٰ کہ مجھے کہا گیا کسی بھی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہنا کہ میں کل کروں گا، جب تک یہ نہ کہو کہ میرا رب چاہے گا تو ہوگا، وگرنہ تو اصلاح ہوئی عقیدے کی کہ نہیں؟ ما شاء اللہ وحدہ۔ دوسرا موقع آیا، میرے پیغمبر کا استقبال ہو رہا ہے، اور یاد رکھیے استقبال میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، نعروں میں لوگ بہت کچھ اضافی بول جاتے ہیں، میں ابھی سٹیج پہ دیکھ رہا تھا کہ بندہ جذبات کی رو میں بسا اوقات وہ بھی بول جاتا ہے کہ جس کا اسے خود علم نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پیغمبر کا استقبال ہے، لوگ گلاب اور پھول پیش کرتے ہیں، مدینہ والوں نے استقبال میں اپنے بچوں جیسے پھول پیش کیے، اور جملے پتہ کیا بولے؟ طالع البدر علینا من ثنیات الوداع، طالع البدر علینا، ماہ تمام بن کے، بدر مکمل بن کے، دنیا کا چاند بن کے، حسین و جمیل بن کے میرے محبوب آئے ہیں، ثنیۃ الوداع سے تشریف لائے ہیں، یہ قصیدہ چل رہا ہے، بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، استقبال ہو رہا ہے، اور ایک جملہ بولا گیا وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہم نے آج وہ غیب کی خبریں دینے والے نہیں بلکہ وحی کی خبریں والے دینے والے، یہ نبی کا معنی ہے، یہاں کہہ دیا گیا غیب کی خبریں دینے والے، کل کی خبر دینے والی ہستی آئی ہے، میرے محبوب نے اسی جگہ روک کے کہہ دیا نہیں یہ جملہ نہیں درست ہے، اسے نکال دیجئے، میں غیب کی خبر دینے والا نہیں، میں وہی خبر دیتا ہوں جو آسمان سے رب وہی بھیجتے۔ اصلاح کی کہ نہیں؟ عقیدت کہہ رہی ہے آپ کل کی خبریں جانتے ہیں، محبوب نے اصلاح فرمائی، اور آخری گزارش ذرا جم کے ڈٹ کے سنیے، میرے پیغمبر کی آخری امید
बेटा सैयदा मारिया किब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपका बेटा जनाब इब्राहिम 18 महीने की उम्र आज इस दुनिया से रवाना हुआ है, दफना दिया गया है। मेरे महबूब के आंसू जारी हैं। लोगों ने कहा है महबूब आपसे सब्र सीखा है, आज क्या हो गया? महबूब कहते हैं अल कल्बु यहज़नु वल ऐनु तदमउ वला नकूलु अला रब्बिना इल्ला मा युहिब्बुहु व यर्दा व इन्ना बिफराकिका लमहज़ूनून या इब्राहिम। बेटे इब्राहिम तेरी जुदाइयों ने आज दिल को जो है वो उबाल के रख दिया है, आंखों की झीलों को उछाल के रख दिया है। आज बंधन टूटे हैं, दुख हुआ है, तेरे हुज़न ने मलाल ने आज परेशान कर दिया है, आंसू जारी हैं, लेकिन हम कोई जुमला अकीदे के खिलाफ नहीं बोलेंगे। हमारी खुशी भी मेयारी, गम भी मेयारी। इसी दौरान में सूरज को ग्रहण लगता है, इधर वफात होती है, उधर सूरज को ग्रहण लगता है। सरजमीने हिजाज में जुमला आम हो गया, सैयद ज़ादा फौत हुआ है। जमीन तो गमगीन थी ही, आसमानों का सूरज भी गमज़दा है, मांग पड़ गई है, रोशनी सियाह हो गया है। आज इसे ग्रहण लग गया है सैयद ज़ादा जो फौत हुआ है। सर जी इत्थे साडा किते तवे ते रोटी ते माड़ा जा निशान बन जाए ना दा असी दलील बना लेने हैं। चांद में कोई थोड़ी सी वैसी झलक पड़ जाए तो हम समझते हैं कि दलील है बड़ेपन की। अकीदत में बहुत कुछ बोल देते हैं। बादल का ऊपर कोई नक्शा बन जाए, हम कहते हैं जनाब फलां हस्ती और सरकार दिख पड़ी। आज वफात हुई है बेटे इब्राहिम की, उधर जो है सूरज ग्रहण हुआ है, दलील बन सकती थी। आप फरमाते कि लोगों देखो, तुम नहीं मानते तो ना मानो, आसमान माने, अर्शे भरी माने, सूरज माने, चांद माने, सियारे माने, सितारे माने, हर मखलूक माने। इंसान ने नहीं माना तो क्या हुआ? नहीं माना, सूरज भी ग्रहण हो गया। लोगों ने कहा सूरज ग्रहण हो गया। सैयद ज़ादा जो फौत हुआ है, मेरे महबूब ने कहा मिंबर लगाया जाए, मिंबर लगाया, इकट्ठे किए जाए लोग। हो गए, महीनों की प्लानिंग होती है, सालों की, फिर जाकर के एक कॉन्फ्रेंस होती है। मेरे महबूब की कभी कॉन्फ्रेंस देखो, इज्तिमाआत देखो, इकट्ठ देखो, बुलावा देखो, इश्तिहार देखो, लोगों का आना देखो, बैठना देखो, दर्स देखो, तदरीस देखो, इस्लाह देखो, अकीदत देखो, अकीदा देखो। बैठ गए, फरमाया मैंने ये बातें सुनी है कि मेरे बेटे इब्राहिम की वजह से, वफात की वजह से आसमान का सूरज ग्रहण है। सुनो, इन्न शम्स वल कमरा आयतान मिन आयातिल्लाह ला यनखसिफान लिमौति अहदिन वला लिहयाति। लोगों, ये आसमान का सूरज, आसमान का चांद, अल्लाह की मखलूकात में से मखलूक, ये दुनिया की तासीर की वजह से, किसी की मौत का असर पकड़ के, किसी के पैदा होने पे इनका नूर बढ़ नहीं जाता, किसी की वफात पे इनका मातम में जो है वो रंग फक नहीं हो जाता, रोशनी मदम नहीं हो जाती, इनको ग्रहण नहीं लगता। ये रब का निजाम है, अल्लाह का सिस्टम है, अल्लाह की मखलूक है, ये उसके ताबे हैं, लिहाजा इस्लाह कर ली जाए। मेरे बेटे इब्राहिम की वफात की वजह से ये सूरज ग्रहण नहीं हुआ। तुम्हारी अकीदतें बचा, मगर अकीदे के खिलाफ है। अकीदा ये कहता है कि ये रब का निजाम और अल्लाह का सिस्टम है। मौजू तफसील और डिटेल से चल सकता है, लेकिन बहुत कुछ सुना आपने। अल्लाह ताला आप लोगों की मोहब्बतों को कबूल करे, इज्जतों से नवाजे। आप बैठे, सुना, अल्लाह अमल की तौफीक भी दे और खुद को बदलने की हिम्मत भी दे। दोस्त अहबाब रास्ते में आते हुए काफ़ी सारे दोस्तों ने दुआ के लिए बोला था। यकीन कीजिए बड़े सारे दुखी लोग अस्पतालों में मसाइल और मसाइब में उलझे हुए, इन अहबाब के साथ जो है वो इंशाअल्लाह गायबाना दुआ उनके लिए कीजिएगा। अल्लाह ताला उनका भी भला करेगा और आपका भी। ये 17 अक्टूबर जुमेरात को तकमील कुरान का प्रोग्राम